Hello. Hello everyone. Welcome to the KV Physics Academy. Today we are going to the study of the PYQ of February 2023. Okay? Electrodynamics. Now, what is the first questions? The direction of propagation. The direction of propagation of electromagnetic wave is given by. मतलब कौन से डायरेक्शन से हमारी वेव जो है तो ट्रैवल करेगी. Simply E bar, B bar, E bar क्रॉस B bar, B bar क्रॉस E bar. तो सिंपल से मेरी बात है. देखिए, सपोज वेव ट्रैवलिंग अलोंग विद डायरेक्शंस हमें देखना है. सपोज दिस वन इज एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस. अरे बात समझ में? एक्स वाई जेड एक्सिस. तो सिंपल सपोज so this one is the x axis and electric field oscillations is along the directions. अरे बात समझ में? Electric field oscillation along the directions. What is the magnetic field? Magnetic field like oscillations along the directions. बात समझ में आ रही? These are perpendicular to each other. Means electric field along the directions and magnetic field along the directions. Yes or no? Magnetic field. Suppose this is a E bar and okay. This is suppose E bar, this is B bar. Suppose मान के चलो कि this one is a x axis, this one is a y axis. Suppose general things आप स्टडी करिए. तो प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन से रहेगा? प्रोपोगेशन अलोंग द डायरेक्शंस. अरे समझ में? प्रोपोगेशन अलोंग द डायरेक्शन मतलब सिंपली क्या होता है? सपोज मान के चलो कि x बार क्रॉस y बार इज इक्वल टू हाउ मच? ये हियर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, then this is nothing but z cap. अरे समझ में? Suppose we can take the y cap into z cap, we getting y after z after x, means here we getting the x cap. अरे बात समझ में? Next z cap dot z cap cross x cap is equal to how much? Y cap. बात समझ में आ रही? मतलब here like a sequence is important. Okay, now similarly here also, suppose electric field along x directions, magnetic field along y direction, तो प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन से होगा? z डायरेक्शन से होगा. अरे बात समझ में? मींस हियर व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट? हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. E बार क्रॉस B बार. अरे बात समझ में? मींस लाइक दैट. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड along x directions, then magnetic field along y directions, then what is the propagations? Like a k bar along z directions. अरे समझ में? मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट along the direction, magnetic field oscillation along the direction, electric field electromagnetic wave traveling in z directions. अरे समझ में? मतलब here which sequence is important? Here E bar cross B bar is important. अरे बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन along this direction, magnetic field oscillation along the direction, propagation along the direction. मतलब हमारा प्रोपोगेशन जो होगा ना, तो इस प्लेन को नॉर्मल होगा. इसलिए मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं कि सपोज दिस इज xy प्लेन, तो प्रोपोगेशन कैसे होता है? ऑलवेज नॉर्मल टू दिस प्लेन. Suppose this is x axis, this is a y axis. मतलब plane ही ना xy plane, xy direct. Okay, plane containing xy, then propagation normal to this one. Normal to this one means nothing but z cap. अरे बात समझ में? Means here electric field along x directions, magnetic field along y direction, then propagation along z directions. मतलब here first part important thing is electric field, second one is the magnetic field.
एंड व्हाट इज द रेगुलर ऑर्डर्स, ई बार क्रॉस बी बार, नॉट बी बार क्रॉस ई बार। ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल होगे नहीं। आपको पता होगा कि ऑसिलेटिंग जो है तो ई एंड बी डायरेक्शन से होगा, लेकिन ट्रैवलिंग जो है तो ई और बी बार के डायरेक्शन से नहीं होगा। अरे बात समझ में, इसलिए दो ऑप्शन तो कट हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बेटर वे आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। व्हिच वन? We know that pointing vectors. Pointing vector S bar is equal to 1 upon U naught E bar cross B bar. ये सीक्वेंस जो है तो आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? Miss, which option is correct one? Option number C is correct. अरे बात clear? Next, yes, any doubt in these questions? No. Electric field at a distance R. Electric field कहाँ find out करना है? At a distance R. Okay? The quadrupole इज प्रोपोर्शनल टू, इस ये तो बहुत टाइम क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं हर बार यही लिख के देता हूँ। यस, पोटेंशियल नेचर, दिस इज अ फेब 2023 को सॉरी फेब 2013 क्वेश्चन। हाँ देखिए हियर हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर हो या पोटेंशियल आर हो, तो हमें फॉर्मूले कैसे रखना, याद रखना है। यस, मोनो, ओके, हियर आल्सो मोनो, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, here first we can take the potential, and third we can take the electric field. अरे बस समझ में, second one is electric field. हाँ, तो मोनो के लिए क्या रिलेशंस रहेगा? देखिए, मोनो is directly proportional to 1 by r. Electric field directly proportional to 1 by r square. Dipole is directly proportional to 1 upon r square. Here directly proportional to 1 upon r to the power 3. And the next one for quadrupoles. Quadrupole is directly proportional to 1 upon r to the power 3. A is directly proportional to 1 upon r to the power 4. Here is the directly proportional or inversely proportional बोल सकते हैं। Directly proportional to 1 upon r to the power 4 बोल सकते हैं, या inversely proportional r to the power 4 बोल सकते हैं। अरे बात समझ में? Means here is a inversely proportional r to the power 4. या भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा मुझे, यस और नो? देन दिस बिकम E is directly proportional to r to the power how much? -4. जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वाड्रुपोल में क्वेश्चंस नहीं होता, लेकिन कभी-कभी तो पूछना पड़ेगा। हर एक एग्जाम में तो आप पोटेंशियल के लिए तो नहीं पूछ सकते। अरे बात समझ में? मींस हियर व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, there are so many times these questions. Clear? ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और ये डाटा आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, आपके माइंड में, ब्रेन में अच्छी तरह से प्रिंट करके याद रखना है। कभी ना कभी ये 2 मार्क्स देके चले जाएंगे या 3.5 मार्क्स देके चले जाएंगे। बस आपको याद क्या रखना है? मोनो 1 upon r to the power 1, r to the power 2 for the electric 1 by r square, 1 by r cube, r to the power 4. This is a very simple one. Next, and electrons, okay, yes, and electrons enter a uniform magnetic field regions with its velocity perpendicular to the direction of the field. Perpendicular to the direction of field. In the field region, the trajectory of electron. Trajectory of electrons. Okay, already questions हमने डिस्कस किया है, I think 13 में डिस्कस किया है। अरे बात समझ में, मतलब एक टाइम में बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, एक टाइम बोलेंगे वो पैरेलल है। समझ में आ रहा है दोनों भी केसेस? तो वो केस हमने कौन सी देखी थी? पैरेलल देखी थी, यस सर ना? जो पैरेलल उस टाइम क्या हो गया था? पैरेलल टाइम, दिस इज ऑसिलेटिंग इन यस पैराबोलिक नेचर, यस और नो? At that time these are the parallels. Now here is a perpendicular. Now here perpendicular, then yes, this one is a perpendicular nature of the trajectory of electron is a circular. उस टाइम पे मैंने बोला था कि जब हमारे पास नॉर्मल होगा तो हमारा नेचर क्या रहेगा, जब हमारे पास पैरेलल है तो नेचर क्या रहेगा। दोनों भी केसेस जो है आपको मेमोराइज करना है। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर, सर्कुलर, पैरेलल, पैराबोलिक्स। बात क्लियर? नेक्स्ट, एन इनफिनिटली लॉन्ग, ये ज्यादा मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, ऑलरेडी इस फॉर्मेट पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस उस टाइम पैरेलल था, इस टाइम हमने ज्यादा डिस्कस किया था। अरे समझ में, मतलब दोनों भी केस परपेंडिकुलर वर्ड हो तो कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना ही है, परपेंडिकुलर कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ये दोनों भी बात को आपने अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, एट ए इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज कैरिंग करंट I.
द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको कुछ बातें जो है तो डाइजेस्ट होना जरूरी है। हमें देखिए तो कौन से डिस्टेंस में हमें फाइंड आउट करना है, एट आर डिस्टेंस। Second things, here they are given the infinitely words are given. Sometimes they are not given the words also. Okay, but nothing is mentioned by default. Take a infinite wire, not a finite wire. अरे समझ में, finite wire और infinite wire के लिए हमारे पास दोनों भी सॉल्यूशन जो होते वो डिफरेंट होते, ये बात याद रखिए। मतलब 90% प्रॉब्लम या 80 90% प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन इनफाइनाइट वायर, नॉट ऑन अ फाइनाइट वायर। अरे बात समझ में। तो जनरली बाय डिफॉल्ट ये इनफाइनाइट वायर होगी, इनफाइनाइट वायर होगी तभी हम ये ट्रिक यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे बात समझ में। हाँ, तो देखिए मेरे पास कौन सी वायर है, इनफाइनाइट वायर है। दिस वन इज इनफाइनाइट वायर। ओके, हाँ, तो क्या करना होता है, देखिए सपोज मैंने 3 थोड़ा सा यहां पॉइंट है, मेरे डिस्टेंस आर है, समझ में आ रहा है। पॉइंट इज हियर, मेरे पास फॉर्मूला क्या देखिए, b इज इक्वल टू यस, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन हाउ मच 4 पाई ए, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और आर भी लिख सकते हैं हम। ओके, आर है तो आर नोटेशन यूज करते हैं हम, इनटू साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, मतलब हियर दिस टू एंगल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेरे ये जो हमने अल्फा और बीटा एंगल्स ले लिए, वो हमें कहां लेना है। जब हम कॉस टर्म लेंगे तो हमारे पास जो हम उस टाइम थीटा 1 थीटा 2 लेंगे वो डिफरेंट पोजीशन पे लेना होता है। जब हम साइन नोटेशन यूज करें तो उस टाइम हमें डिफरेंट पोजीशन पे इसको लेना पड़ता है। अरे समझ में। तो वेयर वी कैन टेक द एंगल, हियर वी कैन टेक द अल्फा, हियर वी कैन टेक द बीटा। अरे समझ में, मतलब दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। ओके, फर्स्ट केस। तो अब मुझे बोलिए तो व्हाट इज द अल्फा बीटा एंगल। अब बोलेंगे सर 90 सॉरी 30 डिग्री 40 डिग्री व्हाट एवर दिस वन। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, वो स्ट्रेंथ उसकी लाइन की जो विड्थ लेंथ है ना, वो लेंथ मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो आप मुझे बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आप बोलेंगे सर डेफिनेटली नाउ अल्फा एंड बीटा वैल्यू आर ग्रेटर एज कंपेयर टू बिफोर एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट टाइम मैंने बहुत लेंथी वायर ले लिया, वैसा बेंड नहीं होगा वायर। हियर इज आर डिस्टेंस पे। नाउ आप मुझे बोले कि व्हाट इज द अल्फा बीटा। आप बोलेंगे सर इससे बहुत, ये जो एंगल्स है तो बहुत ज्यादा एंगल्स है। ये सब ज्यादा एंगल मतलब कितना है, तो मैं जब बहुत इनफाइनाइट वायर लेंगे ना, ले लूंगा। सिंपल आप मुझे बोलिए कि नाउ दिस इज अ सर्कुलर डायग्राम है, जैसा ना, बट मैं ये सब पे बहुत बड़ा ले लूंगा, तो नाउ इस रीजन में मेरे साथ जो लेंथ देखेंगी वो सर्कुलर देखेंगी या स्ट्रेट देखेंगी। तो आप बोलेंगे सर स्ट्रेट देखेंगे, क्यों, बिकॉज दिस लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज, this circle is a very very large radius, yes or no, at that time seeing like that a straight one, yes or no। हमारी जो अर्थ है वो तो सर्कुलर है, फिर लेकिन हमको कैसे दिख रहे हैं, लाइक फ्लैट फ्लैट दिख रहे हैं। सेम थिंग हियर, जब हम वेरी इनफाइनाइट वायर लेंगे ना, तो यहाँ के जो एंगल्स होंगे ना अल्फा बीटा, ये बनेंगे 90 डिग्री। alpha beta is equal to how much, 90 degree। This is not exactly 90 degree, but we consider approximately equal to 90 degree। अरे समझ में, मतलब हमें assume करना है this is approximately 90 degree। ये तो 90 degree होना possible नहीं है, but as close to the 90 degree हो सकते हैं, yes, because this is infinite wire, this is like that straight। अरे समझ में, ये ट्रिक आपको याद रखना है। Now miss what is the alpha and beta here। आप सॉल्यूशन के लिए इतना भी डायग्राम लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है दिस अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। डायग्राम आप छोटी लीजिए लार्ज लीजिए, बट एंगल कितना लेना है, 90। तो बस अभी बाकी कुछ बातें होती नहीं इस प्रॉब्लम में, बस आपको अल्फा बीटा की वैल्यू लिखना पड़ता है, कुछ भी नहीं। बस मैंने अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है, 90 डिग्री लिखा है। देन बी इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू sin अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, sin 90 1, 1 plus 1, 1 plus 1 is how much, 2। Okay, then this is equal to how much, mu naught I upon how much, 4 pi r into how much, 2। तो 1 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, simply mu naught I upon how much, 2r। then which of the following option is correct।
ओके 4 पाई आर, पाई लिखना हम रह गए नहीं क्या? तो वही तो मैं दिख रहा हूँ कि आर का पाई का गायब हो गया। यस 2 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज दिस डोंट राइट ऑन द आर पावर 2, आर पावर 1 ही होनी चाहिए, बस बाकी आपको थोड़ा सा चेक करना है। लेकिन चेक करने की भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस ये फॉर्मूला लिखने का, अल्फा बीटा लिखना है। उन्होंने बोला कि एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर इज। आपने बोला कि सर व्हाई वी कैन चूज पॉइंट इज हियर, दे आर नॉट गिवन वन वर्ड, विच वर्ड? वन एंडेड सिस्टम। तो आपको मिडल पे ही पॉइंट लेना है। अरे बात समझ में? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने वन एंड क्यों नहीं लिखा, सही बात है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि वायर इज वन एंडेड। वन एंडेड हो तो क्या होता है, ये जो एंगल है ना वो डिक्रीज 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 होगा और वन एंड पे कितना होगा, दिस बिकम अ जीरो। अरे समझ में? एट दैट टाइम यस वन एंडेड वायर हो तो पॉइंट यहां होता, ये जो अल्फा दिख रहा है ना आपको, यही लाइन पे आ जाएगा, मतलब एक ही एंगल जो है ना वही, सपोज दिस इज अ बीटा एंड यह एंगल कितना होगा, अल्फा, and alpha is equal to 0, beta is equal to how much, 90 degree, for which case, for one ended for one ended system, for one ended system alpha is equal to 90 degree, और कोई भी चूज करे, beta is equal to 90 भी ले सकते, but one angle is equal to 90 degree, one angle is equal to how much, 0। अरे बात समझ में? alpha is equal to 0, beta is equal to 90, then what is the magnetic field? one ended one ended is equal to how much, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डिस्टेंस आर ले सकते, ए ले सकते, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में कौन सा नोटेशन यूज कर लिए इसके हिसाब से लीजिए। साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0, साइन 90 1 मींस व्हाट इज द सिंपल आंसर? सिंपल आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अरे समझ में? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंडेड, बट कौन सा वायर? इनफाइनाइट वायर। दिस वर्ड आल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें और कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इज लाइक दैट, ऐसा कुछ डायग्राम्स रहेगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी, और पॉइंट पी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। तो बी इज इक्वल टू हाउ मच, सिंपल अगेन, म्यू नॉट आई अपॉन हाउ मच, 4 पाई। यहां रेडियस लेते हैं आर, कैपिटल आर, रेडियस इज कैपिटल आर, इनटू सिंपली क्या होता है, तो एंगल फाई लेते हैं यहां, बस बाकी कुछ नहीं, नो नीड टू राइट ऑन द साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसलिए थोड़ा आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने तो यही बताया, तो अभी तो ये तो अलग आंसर अलग फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, तो सही बात है। ये फॉर्मूला हमें कहां यूज करना है, फॉर स्ट्रेट वायर, समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर यस बी इज इक्वल टू हाउ मच, बी इज इक्वल टू यस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin alpha plus sin beta, sin alpha plus sin beta, this is for which line, straight line, this formula for कौन से केस के लिए, straight line के लिए, and this formula for circular case, which case, for circular case we can use which formula, mu naught upon 4 pi r into 5। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यार हमें जो है ना, तो 3 सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, दिस इज द सेकंड सिस्टम, दिस इज द थर्ड सिस्टम। ओके, सेकंड बात, मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट हो सकता है, और या कहां क्रिएट हो सकता है, अराउंड द वायर, ऐसा इसके अराउंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस, मतलब इसमें कोई ना कोई तो पेस जरूर होना जरूरी है, तभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होता है। पहली बात, जब हम उस वायर पे ही देखेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही? आप बोलिए उसका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, सर्कुलर क्रिएट होता है, तो ये सर्कल बनाने के लिए कोई ना कोई तो रेडियस डेफिनेटली होनी जरूरी है। जब जिस लाइन पे आप करंट ले रहे हैं वही लाइन पे तो लूप क्रिएट होना डिफिकल्ट है। अरे समझ में, सबसे कम वाला वायर ले लिए कि जिसकी रेडियस सबसे कम है, ये सब ना, इसमें सर्कुलर लूप बन ही नहीं सकता। अरे समझ में, लूप नहीं क्रिएट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा, ये सब ना, मतलब ऑन वायर पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता नहीं। फॉर दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 0। हियर इज सपोज 1 2 3, देन b1 इज इक्वल टू 0। ओके, हियर b3 आल्सो ऑन वायर, b3 is equal to how much, 0, one way, और another way जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट अपॉन like this something into sin theta, then theta is equal to how much, theta जो एंगल बनता है ना, हमारे पास जो रेडियस लेंथ होता है, जो लेंथ पार्ट जो है ना, लेंथ पार्ट के साथ theta is equal to कितना होता है, 0 होता है, then sin theta sin 0 is equal to how much, 0, then magnetic field is equal to how much, 0। दोनों भी वे से आप देख सकते हैं। अरे समझ में, हेयर लेंथ एलिमेंट में एंगल कितना है, हेयर 90 डिग्री है, तो उस टाइम क्या होता है, तो ऑन वायर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो sin 0 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? इसलिए फॉर दिस टू पार्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0,
What is the magnetic field for B2? Simply mu naught I अपॉन 4 पाई r. r कुछ भी रेडियस हो सकती है, यहाँ r है, वहां a हो सकती है, b हो सकती है, वट एवर दिस वन, इनटू फाइव. फाइव इज द एंगल. कितना एंगल है उस वायर ने, कितना एंगल कवर किया है. Here suppose angle is 0, here angle is 90 degree, here is a pi, means here we can write down the how much pi, don't write down the 180 here. Pi get cancel, means what is the magnetic field of B2? B2 is simply mu naught I upon how much 4r. बात क्लियर. हाफ सर्कल, जब उस अमाउंट का सर्कल हो तो सपोज मान के चलो इतना ही सर्कल है, 1/4 सर्कल है. कितना सर्कल है? 1/4, मतलब 90 डिग्री. यहां से यहां तक ही सर्कल है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P? And then what is the BP? BP is equal to mu naught I upon how much 4 pi r. ये फॉर्मूला कहां यूज करना है? सर्कुलर केस के लिए. हाउ मच एंगल कितना है? पाई बाय 4 है. पाई बाय 2 90 डिग्री है ना, तो पाई बाय 2. तो पाई बाय गेट कैंसल. देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? mu naught I upon 8r. अरे समझ में. सपोज 3/4 सर्कल है, इतना पार्ट इसमें नहीं है. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P? Then the magnetic field at point P is equal to mu naught I upon how much 4 pi r into ये कितना बनेगा 3 pi by 4. तो लिखिए 3 pi by 4. बात समझ में आ रही है? इज लाइक दैट. मतलब जितना 270 एंगल है, इस टाइप के क्वेश्चन इस पर हो सकते हैं. ओके, फिर ट्रायंगल के लिए भी होता है, स्क्वायर के लिए भी होता है. ये सर ना, इसके लिए मैं और नेक्स्ट बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो मैं उस टाइम और डिटेल्स में अलग सिस्टम को भी बता देता हूं कि मतलब ये ट्रिक से सॉल्व करने के, कैसे ट्रिक से सॉल्व करना. अभी रेगुलर मेथड सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता, ये सर ना. तो ट्रिक से हम स्क्वायर के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई सिस्टम है एनक्लोज कर रहे हैं हम सर्कल में, तो उस टाइम कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना विदाउट रेगुलर मेथड, दैट ट्रिक वो भी मैं बता देता हूं. अरे बात समझ में? ओके. नेक्स्ट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस? नो. ओवर दिस 4 क्वेश्चंस इज ओवर. Next, for attractive inverse square. For attractive inverse square, force shape of the orbit will be. ये जो डाटा है ना कुछ, उसको डायरेक्टली आपको याद करना पड़ता है. For this case, which option is correct? Elliptical path is correct one. Next, in pre-space, an infinite grounded conducting plane. In a xy plane, the force experienced by the point charge q at a distance कितना है? 0 0 d. इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है या थोड़ा सा कुछ बेसिक थोड़ा सा याद रखना है. हाँ, कौन सी सिस्टम है? इस सिस्टम के लिए तो रेगुलर मेथड याद ही रखिए. देखिए, दिस वन इज द इनफाइनाइट प्लेन. ओके, दिस इज द प्लेन है. उसके ऊपर मैंने एक चार्ज रख दिया. कितना चार्ज है? q चार्ज है. एट हाउ मच डिस्टेंस? d डिस्टेंस है. अरे बात समझ में. ये जो ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड हो गया ना, तो कैसे बिहेव करेगा? दिस इज लाइक दैट, बिहेव लाइक अ मिरर. अब मुझे बोले मैं वहां खड़ा हूं, तो आपको मैं कहां दिखूंगा? सपोज मान के चलो दिस वन इज अ मिरर, तो वही डिस्टेंस में मैं बैक दिखूंगा. यस और नो? सेम डिस्टेंस बट ऑन द इनटू द प्लेन में दिखूंगा. यस और नो? दिस इज मतलब ये सिस्टम है. सपोज ग्राउंडेड नहीं है तो वो मिरर जैसा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन जब मैं उसको ग्राउंडेड कंडक्टिंग कर दे दूंगा, तो दिस बिहेव लाइक अ मिरर. अरे बात समझ में? हाँ. तो सपोज मैंने d डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, तो उसका मिरर कहां मिलेगा? तो आप सिंपल बोलेंगे सर मिरर के पीछे दिखेगा. पीछे मतलब हियर बिलो दिखेगा. यस और नो? लेकिन सपोज सिंपल सी बात है, मैंने वो मेरा राइट हैंड है, तो मैं मिरर में कैसे दिखूंगा? इज लाइक दैट. यस और नो? मतलब मैं थोड़ा सा इन्वर्ट हो गया. सेम हियर चार्ज प्लस क्यू है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? माइनस क्यू. फिर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, इमेज कैसी फॉर्म होगी? प्लस क्यू फॉर्म होगी. अरे बात समझ में? सर्कुलर के लिए तो हमने क्वेश्चंस देखा था. व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस फॉर सर्कुलर केस? व्हाट इज द इमेज चार्ज? ओके, एट दैट टाइम वी कैन यूज द फॉर्मूला. यस, इमेज सर्कुलर कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस. एंड इमेज चार्ज के लिए माइनस क्यू, रेडियस अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. बट ईयर क्या होता है? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल, रियल डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है, एंड इमेज चार्ज इज इक्वल टू रियल चार्ज, बट साइन इज माइनस. बट वहां सर्कुलर स्फेरिकल सिस्टम में क्या होता है? स्फेरिकल सिस्टम में वहां चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस क्यू, रेडियस अपॉन डिस्टेंस, एंड रेडियस स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस. अरे समझ में? बट यह थोड़ा सा अलग है.
image distance is equal to yes, image distance is equal to yes, which distance? Real distance. मतलब मैं 2 मीटर में अवे यहाँ स्टे हूं तो बैक में भी मैं 2 मीटर में ही दिखूंगा. ओके, फर्स्ट थिंग इज ओवर. सेकंड थिंग्स, image charge is equal to how much? Minus real charge. अरे बात समझ में, image charge is equal to minus real charge. क्लियर? नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फोर्स. ओके, यस, फोर्स से फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वन. तो F is equal to how much? Simple, like a Coulomb's law. F is equal to yes K Q1 Q2 upon how much? R square. K Q1 Q2 upon R square. ओके, बट उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखी है? हियर डायरेक्शंस आल्सो गिवन. ना, डायरेक्शंस आल्सो गिवन. इसीलिए हमारे पास दो ऑप्शंस है ना, तो वेरी क्लोज हो रहे. वो बस मैग्नीट्यूड देते ना तो लगे एक ही ऑप्शन पॉसिबल हो जाता, बट दे आर गिवन डायरेक्शन आल्सो इंपॉर्टेंस. ओके, वन. तो हमारे पास जो साइन होता है ना, हम दो वे से ले सकते हैं. एक तो आप मैग्नीट्यूड में लीजिए, या सेकंड थिंग्स होती है आप डायरेक्शन में लीजिए. अरे बात समझ में. तो व्हाट इज द फोर्स? आप देखिए, वेयर इज द चार्ज? आप बोलेंगे सर हियर चार्ज इज क्यू, हियर चार्ज इज माइनस क्यू. फोर्स फाइंड आउट करना है. बात समझ में आ रही है? लेकिन फोर्स कहां फाइंड आउट करनी, यही दिमाग में नहीं है, तो हम परफेक्ट आंसर नहीं सॉल्व कर सकते. सेकंड बात आपको याद रखना है, हमारे पास कितने चार्जेस है? एक ही चार्ज है. एक रियल चार्ज है, एक इमेज चार्ज है. एक रियल चार्ज है, एक इमेज चार्ज है. जब हम सोते हैं तब हम कुछ ड्रीम्स देखते हैं. ये सामने सही बात है, कुछ ना कुछ ड्रीम देखते कि नहीं देखते? ये सोते टाइम देखते हैं. सेकंड थिंग, जब हम जगते टाइम होते तभी भी हम ड्रीम्स देखते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट कहां है? जब सोते टाइम देखा हुआ ड्रीम्स को इंपॉर्टेंस है, या जब आप लाइव हो तब देखा हुआ ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है? तो आप बोलेंगे सर जब लाइव हो तब ड्रीम इंपॉर्टेंट. सही बात है. मतलब इमेजिनरी के लिए कोई वैल्यू नहीं जनरली. समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्या होता है? रियलिटी इज इंपॉर्टेंट, नॉट इमेजिनरी इज इंपॉर्टेंट. अरे समझ में? सिमिलरली हियर आल्सो image charge is not an important is real one. अरे समझ में? मतलब जो भी हमें करना है, अब मुझे बोलिए कि चेंजेस मेरे में हो जाएंगे या मेरे इमेज में होंगे? इमेज में होंगे, लेकिन कब? जब मेरे ऊपर कुछ चेंज होगा तो. अरे समझ में? मतलब जो भी चेंज है, जो भी स्टडी करना है, हमें किस पे करना होगा? रियल चार्ज में, इमेज चार्ज में? तो रियल चार्ज में. अरे बात समझ में? तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना होता है तो कहां? लाइक एफ क्यू, यहां फोर्स फाइंड आउट करना होता है. इमेजिनरी चार्ज पे हम फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. बात आ समझ में आ रही? इमेज चार्ज पे हम फोर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते. मतलब कहां फाइंड आउट करना है? वहां. तो मैं एक डायरेक्ट लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू हम सपोज दिस वन इज अ z एक्सिस. सपोज दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज अ z एक्सिस. तो पहली बात, F इज इक्वल टू हाउ मच? k q1 q2. ओके, बार लिखा तो यहाँ कैप हो जाएगा, कुछ भी कैप. आप x हो सकता है, y हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दिस वन. ओके, देन F इज इक्वल टू हाउ मच? देखिए F बार इज इक्वल टू, हियर चार्ज इज प्लस q है, q1 इज इक्वल टू हाउ मच? q1 इज इक्वल टू प्लस q एंड q2 इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस q. तो लिखिए प्लस q इनटू माइनस q अपॉन हाउ मच? 4 पाई, सॉरी, k upon yes, k upon r square. Means r means a distance between these two charges. This distance is d, this distance is d. Then total distance is equal to how much? Means r is equal to how much here? 2d. Means this is equal to how much? Simply 2d bracket square. Now this axis is a z axis. Easily we can write down here is a z cap. Okay. Plus q into minus q is a minus q. Means f bar is equal to how much? Minus kq square upon how much? 4d square. Bracket complete into like a cap. But we know that k is nothing but k is equal to how much? 1 by 4 pi epsilon naught होता है. 1 by 4 pi epsilon naught. Just substitute it here. Then f is equal to become q square upon minus q square around 4 into 4 become 4 into 4 16. 16 pi epsilon naught into how much? D square. Means which option is correct? Minus q square upon 4 by epsilon naught d square z. This option is correct by using this method. One method. Okay. Second things. सपोज आपको सेकंड मेथड यूज करना है. आप फोर्स कहां है फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर
इस पॉइंट पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, इस चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना है। तो F इज इक्वल टू हाउ मच देन, सपोज दिस फर्स्ट चार्ज इज Q, सेकंड चार्ज इज Q। अभी हम साइन जो है ना, तो अभी इसमें हमने चार्ज में मैंने मैग्नीट्यूड में साइन लिया था, नॉट इन डायरेक्शंस में। अरे बात समझ में? अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉट टेकिंग इन मैग्नीट्यूड, वी कैन टेक साइन इन डायरेक्शंस। ओके, तो फर्स्ट चार्ज इज Q, सेकंड चार्ज इज Q अपॉन हाउ मच, K Q Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू हाउ मच, 2D, मींस दिस बिकम 4D स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू Z क्या। अभी जो Z कैप है ना, तो आप मुझे बोलिए कि वी कैन राइट ऑन द प्लस और माइनस। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास दोनों भी ऑप्शन सेम है, बस डिफरेंस इज साइन ओनली। तो आप माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, इसमें एक आपका गलत होने का चांस होगा ही। आप सही लिखेंगे तभी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी प्लस साइन लिखना, माइनस, आपने करेक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर दिया, लेकिन साइन में गलती कर दी, तो भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लिया है, यहां मैंने मैग्नीट्यूड में साइन लिया था, तब मुझे डायरेक्शन में कोई भी साइन लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता होता है, हमने कंसीडर किया दिस वन इज Z एक्सिस, तो सिंपली Z कैप लिखिए। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने साइन मैग्नीट्यूड में कहीं भी नहीं लिया, बस मुझे अभी कहां साइन लेना है, डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन कैसे चेक करना है, तो आप मुझे बोलिए which one is a reference here, this one is a reference, huh? This charge is a reference charge है, and this one is a, बाकी को सेंटर बोल सकते हैं आप। ओके, मतलब रेफरेंस हम कंसीडर करते, उस पे इफेक्ट हमें चेक करना पड़ता है, उस पे इफेक्ट हमें चेक करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, मतलब आपको कोई स्टूडेंट का स्टडी करना है, वो स्टूडेंट क्या हो गया, रेफरेंस, इस पर बाकी वाला सराउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है, ये सर ना, मतलब उसके वजह से नहीं, उस पर नहीं इफेक्ट होता, बाकी वजह से इफेक्ट होता है, और वही हमें चेक करना पड़ता है। सेम इस रेफरेंस चार्ज पे किसका इफेक्ट होगा, माइनस क्यू चार्ज का इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा, तो सिंपल, ये रेफरेंस है, ये खुद से कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा वो सराउंडिंग करेगा। बात समझ में आ रही, सराउंडिंग में क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज इस पे क्या इफेक्ट करेगा, माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, सिंपल, यही तो स्ट्रेटजी रहेगी इसके बीच। तो सिंपल, दिस इज अ माइनस, दिस वन इज अ प्लस, ये माइनस वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस और नो, मींस फोर्स अलोंग किस डायरेक्शन से रहेगी, ए बार अलोंग द डायरेक्शंस। बात समझ में आ रही, मतलब दिस चार्ज मूविंग अलोंग दिस व्हिच डायरेक्शंस, डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, तो अब हम पॉजिटिव जेड ले सकते हैं, बिलो हम नेगेटिव जेड ले सकते हैं। अरे बात समझ में, मतलब दिस पार्टिकल और दिस चार्ज इज मूविंग अलोंग विद डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन से फोर्स एक्ट होगा, मतलब तभी तो पॉसिबल है ना। तो फोर्स किस डायरेक्शन से एक्ट होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से, इसलिए मुझे साइन कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, बिकॉज दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से हमारा पार्टिकल मूव हो रहा है उस डायरेक्शन से ही फोर्स होगा। ओके, ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फोर्स किस डायरेक्शन से रहेगा, माइनस जेड क्या। आप दोनों भी वैसे कर सकते हैं, या मैग्नीट्यूड पे लीजिए या डायरेक्शन में लीजिए, माइनस जेड क्या, मीन दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एफ इज इक्वल टू, बार लिखना होगा, माइनस k is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught, here magnitude will be same, q square upon 16 pi epsilon naught d square, bracket complete into like that, z cap is what is the magnetic field, magnetic field is equal to this one. Okay, yes, any doubt in these questions?
यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसका डायमेंशन हमें निकलना है। ओके, व्हाट इज द डायमेंशन एंड क्वांटिटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर? तो हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसका, तो यहां थोड़े हमें ट्रिक यूज करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट एवरेज एनर्जी। ओके, एवरेज एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट लाइक दैट पावर। यस और नो, लाइक दैट पावर पर यूनिट एरिया। अरे समझ में, पावर पर यूनिट एरिया, एरिया इज नथिंग बट एनर्जी। अरे समझ में, मतलब एवरेज एनर्जी, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एवरेज डेंसिटी। पावर इज नथिंग बट, बोलिए पावर क्या होता है? पावर, पावर मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स वर्क अपॉन टाइम। अरे बात समझ में, वर्क अपॉन टाइम। ये पूरा रेगुलर कैलकुलेशन करेंगे, फाइंड आउट द एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन, फाइंड आउट द ई स्क्वायर डायमेंशन, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए थोड़ा ट्रिक यूज करिए। दिस इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट और पावर पर यूनिट एरिया। देन पावर कर ली कि फर्स्ट फाइंड आउट करिए, पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज नथिंग बट, बोलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाउ मच? डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाउ मच? टाइम। तो फोर्स का आपको आपको है ना डायमेंशन कंपलसरी याद ही होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फोर डायमेंशंस? फोर्स डायमेंशन क्या होता है? लाइक दैट फोर्स इनटू, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशंस, mass into accelerations into how much? Displacement upon time. Acceleration means क्या होता है? Acceleration is nothing but velocity upon time होता है, yes or no? dv upon dt, मतलब mass into velocity upon time। अरे समझ में, velocity upon time into how much? Displacement divided by time, yes or no? तो अब मुझे बोलिए कि टाइम इंटू टाइम बिकम लाइक अ टाइम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, mass into, yes, velocity into how much? Into displacement divided by how much? Divided by how much? Displacement upon time into time हो गया, time into time। Okay, next mass into velocity, velocity is nothing but displacement upon time into displacement divided by how much? Time, divided by time। okay, then this is equal to how much? Displacement upon time। तो डिस टाइम को नीचे लिखिए, टाइम इनटू टाइम क्या हो जाएगा? टाइम स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डोंट राइट डाउन द टाइम टू स्क्वायर। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम इनटू दिस टाइम, दिस टाइम, दिस टाइम, मतलब टाइम क्यूब होगा। अरे समझ में, टाइम क्यूब मतलब सिंपली यम यल स्क्वायर टी टू द पावर, ये ऊपर जाके आने के बाद क्या होगा? -3। अरे बात समझ में? दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर। लेकिन हमें क्या करना है? पावर पर यूनिट निकालना है, पावर पर यूनिट एरिया। तो एरिया का डायमेंशन क्या रहेगा? एम एल स्क्वायर एल टू द टी टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज नथिंग बट एल स्क्वायर होगा। तो यम एल टू टी टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय हाउ मच? एल स्क्वायर। तो स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली m1 l to the power 0 t to the power -1। t to the power क्या हो गया? -1।
dimension of epsilon naught e square, power work done 0 L to the power 0 t to the power minus 2 is not there. Dimension of quantities. Okay, wait. ओके सेकंड डिसीजन में हम इसको सॉल्व कर देते व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओके 2 मिनट के लिए रुकिए इसमें उसको नेक्स्ट सेशन में हम ऐड कर देते हैं इस क्वेश्चन को यस एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन अप टू हियर ओके